Can you see my screen? Yes. Can you see the data written on it? Yes. Oh, yes. So देखो T means type, school means school. Of course, it's a variable, and record. It means I'm going to declare the data which belongs to school, like serial number, class, school address. So this type of data type is called composite data type. What it called? Composite data type. And we are going to, specify record of any particular thing. Like I'm declaring the record related to school, right? Yes. चलो, अच्छा इसको कॉपी बाद में करना, ठीक है, मैं अभी टाइम दे दूंगा आपको। अच्छा, अब हम लोग आते हैं एरेस पर, ठीक है जी, एरेस। व्हाट डू यू मीन बाय एरेस? देखो, एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज एरे? एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा स्ट्रक्चर? Means you organize the data in a organized form. Okay. In a organized form. So you said, sir, if I'm going to write the data into columns, rows, I need a table. So that table is called arrays. Yes, you can say a table which consists on rows and columns are called arrays. You can call it arrays, no problem, because you draw a data structure in which you input the data in a tabular form, right? Yes. So array is a data structure which consists on elements of the same data type. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। स्कूल में पढ़ा है तुमने ये टॉपिक? Yeah, we did this in school. अच्छा, सो अंडरस्टैंड किया था या बस ऊपर से गया? No, I understood it that time. देखो, एरे इज अ डाटा, तो मैं तेज चलूं या मतलब नॉर्मली पढ़ाऊं जैसे भी पढ़ा रहा हूं स्लो? No, could we do this normally? अच्छा चलो सही है। An array is a data structure containing several elements of the same data type. अब देखो ये होता क्या है, आपके सामने एक array नजर आ रहा है। पहले तो ये बताना चाहूंगा, array is of two types, one dimensional array and two dimensional array. How many types of array are there? Two types, 1D arrays and 2D arrays. अच्छा, 1D array में आपको सिर्फ एक सिंगल कॉलम दिया गया है, you can see there is a single column, and in two-dimensional array you will get the whole rows and columns form table. Whether it have 5 rows and columns, it is called a proper 2D dimensional arrays. But if you have a single column, that is called one dimensional array. ठीक है? अच्छा, Yes. यहां तक तो हम समझ गए। अब देखो, मैंने एक array डिक्लेयर किया है। What is the name of this array? My list. In this array, you are observing that you have the data 27, 19, 36 till 55. Can you tell me which data type does it belong? It's integer or Yes, integer? yes. That's like a girl. These all are integers. These all are integers, and isn't it? Yeah. So these data 27, 19, they are called elements. They are called elements. And their data type is integer. Integers. शाबाश। अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब तुम देखो, हर लेवल का एक नंबर है, 0, 1, यानी कि तुम समझ लो जैसे कि एक बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं, वैसे एरेस के अंदर भी इंडेक्स होते हैं। क्या होते हैं? इंडेक्स। दे आर कॉल्ड इंडेक्स। द फर्स्ट इंडेक्स इज कॉल्ड लोअर बाउंड and the last index is called upper bound. Yes. So array is a data structure. It means it organizes the data in a tabular form. Number 2, array is defined into two types, one dimensional and two dimensional. One dimensional array have one column. Two dimensional arrays have multiple rows and columns. Then we come to know how to declare an array in a pictorial form. We need to specify the name of an array.
We need to mention the elements, the index, and it forms an one-dimensional array. Is that okay or not okay? Elements, the index, and if it's one-dimensional or two-dimensional, right? Two-dimensional, right? अच्छा, अब जल्दी से notebook निकालो. Acha. Make a title page for arrays, title page arrays, and you need to write down this definition till line number 3, and then you need to declare this array. Once you're done, I will scroll up. Your time starts now. So when we are going to declare an array, remember the rules. First thing, you need to use our declare. Second thing, you need to use an identifier. Do you know what is an identifier? Variable. So what is the variable name? Right. My list. My list. Isn't it? Chalo. Yeah. Acha, LB or UB kya hai? LB means Up. lower bound. Lower bound. Yes. And upper bound. And finally, the data type, integers. Do you understand this? Yes. Okay. The declared array can be used. Acha, if you wanted to, if you wanted to declare any specific part, like my list, I'm writing, okay? My list 9. So what does it mean? My list 9. It means that you are calling the 9th element in your array. Can you tell me what is the 9th element now? That is the reason I make you write down. Tell me in your book, in your copy. 9th element. There are only 8 elements. चलो 8 element की फिर मैं 7 ले लेता हूँ. चलो 7 बताओ. 16. 16. So this is how you are calling any specific data, by writing the index number, right? Okay, yes. Understand? I do, yes. Write it down. Now we are going to discuss about the 2D arrays. As I told you, 2D arrays means it is a form of a table. So you can see it is a form of a table. The name of this 2D array is my array. The same structure is just like the 1D array. You have a lower bound, you have a upper bound. But the new thing is you have a lower and upper bound in a column wise as well. Look. So the first column is a lower, the last column is a upper. The first row is a lower, the last row is a upper. And then you can see the rows and columns are being indexed as in this way. So now let's see how to declare this array. So you need to write down declare, identifier, what is the name of this array? My array. Then you need to write down array, LBR, UBR. We are talking about the lower bound row and upper bound row. So we have lower and upper bound row are from 0 till 8. Then LBC, UBC means lower bound column, upper bound column. We have 3, 0 till 2. And then data type as integers. Let's see. Look. Is that same? Yes, okay, yeah. And you can see on my array 7, 0. The first one is a row and other one is a column. Can you tell me what is the data on 7, 0? When you go up, I don't have it. Array, chalo. 7, 0, huh? We have 16. That is how you are going to find the specific data. So now we are going to start the topic linear search. Linear search means if you wanted to store the data in an array and you wanted to search for a specific data, like we do in array 7, in array 0. Right now we have done array 0, Yeah. 7, 0. Okay? If we wanted to search any specific data in an array, we need to use a linear search method, right? Give me 1 second, I'm sorry. I'm sorry. Okay, no problem. You want me to repeat the thing again? Are you there? I'm sorry, just give me 1 second. Okay, take your time, no problem. It means that you need to see or search every element of the array. How? From the lower to the upper bound. What does it mean? Lower to upper. See?
Yeah. See lower to upper. What does it mean? Right here. It means that you are going to start from here and then check the data in this way. Lower to upper का ये मतलब होगा ना, ऊपर से नीचे. हाँ. ठीक है. अच्छा, तो linear search का मतलब ये होता है we are going to search element, we need to search from lower to upper bound. ठीक है. Until the item is found. और कब तक search करना है? Until the item was found, right? Yes. So we are going to write down an pseudocode and we are using the array mylist. Have you write down mylist? Array 27, 16, the single 1D array. Yes, I did. ठीक है ना. अब तुमने लिख लिया था, देखो मैंने इसीलिए लिखवाया था तुम्हें. अब तुम्हें वो 1D array की पेज पे दोबारा जाना है और उसी पर ये एल्गोरिथम लिखनी है. Do you understand it? Yes. Great. चलो पहले सुन लो, अभी लिखना कुछ भी नहीं है. First you need to understand. Declare name of array, attributes of array, and data type of array. Mylist array lower bound 0, upper bound 8. What is the data type used in this array? Integer. Great. Upper bound integer है, lower bound integer है. Integer. अच्छा देखो हम लीनियर सर्च कर रहे हैं, राइट? लीनियर सर्च चल रही है. पॉइंट टू बी नोटेड. अच्छा, इंडेक्स इंटीजर. इंडेक्स मींस 0 1 2 3 द पोजीशंस ऑफ द एलिमेंट्स, राइट? अच्छा, आइटम द एलिमेंट्स इंटीजर. फाउंड बूलियन. व्हाट डज इट मीन? टेल मी अबाउट बूलियन. Yes or no, or true or false. Yes. देखो फाउंड, so the situation become true, right? Or Yes. false. So that's why we use Boolean here. Can you tell me the upper bound number? Upper bound number? The position of upper bound is 8. The lower bound is 0, right? In index. Yes. Now we are going to start writing the pseudocode. First, I'm printing something. Output, please enter item to be found. Yes. Once you run the program, this message will be displayed. Please enter item to be found. अच्छा, अब तुम आइटम नंबर लिखती हो 19. ये देखना 19. जरा मुझे बताओ कि 19 है कोई एलिमेंट माय एरे में? नहीं. नहीं है. नहीं है. कौन सा है फिर? 29 है. कोई सा भी मुझे बता दो जो मौजूद है. Element? Yeah, there is an element 19. अरे यार, Right, I thought मुझे खुद ही जाना पड़ेगा. Records. अच्छा, मैं देखता हूँ कोई 19 है तो नंबर 1 पे. कमाल है यार ये. Look, 19 is here. Yes, I'm sorry. Oh, that is why I told you you need to eat something before my class. Look. अच्छा, 19 is an item. अच्छा, 19 कौन से प्लेस पर है? फर्स्ट पर है. अब सुनो. Input item. Now I'm going to input the item. What item I have input? Tell me. 19. 19 is item I just enter into the computer. Look. अच्छा, अभी situation found है false. क्योंकि प्रोग्राम जब स्टार्ट हो रहा है तो कंडीशन false है, यानी 0 है. ठीक है ना? Once we start the program, everything is 0. Now index is equal to lower bound. What do you mean? Index, lower bound is 0, so index is 0. Yeah. And now computer is going to search according to the index. 0, 1, and so on. So our data 19 is lie on first position. Remember? अच्छा. Yes. अब जाते हैं हम वापस से थोड़ा सा ऊपर. Repeat. Now we are using repeat until loop. Why we are using loop here? Tell me. For it to Because be in an order. we have multiple items, one after another. So if we have multiple data, one after another, it means it is an iteration. So for iteration, we need a loop. For loop, we are using repeat until, right? Okay. Yes. Chalo. अच्छा, if item, अभी item मैंने क्या input किया? जल्दी बताओ लबीबा. 19. ये is equal to my list index. क्या मेरा आइटम my list में इंडेक्स में है? If यानी अगर. आप बताइए है या नहीं है?
No, no. Of course it is on position number 1. Then found is equal to true. Definitely the computer will found and my data will be true. And if index is equal to index plus 1, it means the computer will move on the index 1, then index 2, then index 3. But fortunately, my data lie on index number 1. So my program will be stopped here. It will not go to the next position, right? Yes. So until the condition is right here, I told you कि अगर कंडीशन फाउंड हो गई तो ट्रू है, इंडेक्स नंबर हमेशा ज्यादा होना चाहिए अपर बॉन्ड से। यानी कि आपके पास अपर बॉन्ड की क्या कंडीशन है, इधर ज्यादा नहीं होगा, लेसर होगा या लेसर आएगा, ठीक है। ग्रेटर देन तो हो ही नहीं सकता ना, इंडेक्स हमेशा लेसर देन होगा। देखो अपर बॉन्ड तो 8 है, अब इंडेक्स ज्यादा कैसे हो सकता है, डेफिनेटली लेसर होगा, तो ये मिस प्रिंटिंग है, तो तुम इसको करेक्शन कर देना। हाँ भाई, अगर फाउंड हो जाए, इफ फाउंड then print item found, else item not found. That's it. This is called linear search. Okay. समझ आया या नहीं आया, ये ऊपर से चला गया? I understood. अब जल्दी से प्रोग्राम उतारो, पहले ये पार्ट उतार लो, ठीक है, और फिर नेक्स्ट। रुको मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। Right, you need to write down the heading of using linear search, then you need to write down this program. Okay, you have 5 minutes. One question. Yeah, can linear search be used when we're using 2D arrays? Sorry, I can't hear you. Again, speak. Can linear search also be used in case of 2D arrays? Yes, we can use in 2D arrays as well, but the condition and the program will be different. Oh, we can search, we can use this linear search, no problem. Okay. Okay. Bubble sort is another way to search the data, but bubble sort works on 2 things. First, the data should be in a proper format, like ascending to descending. Do you understand? Bubble sort work in a order, like the data should be in ascending to descending order, right? Yeah. Achha. Number 2, bubble sort swaps the data if the data is not in ascending order. Are you writing something? Yeah. Wait, I will copy it. If data is not in order, like if your data is not in ascending order, so the swap will work, right? Yes. रुको मैं show करता हूँ तुम्हें. I just find a one line, so I'm just sharing it with you. Look, bubble sort works in right ascending and descending order, and it swaps if the data is not in order, right? Yes. अच्छा जी, how? Let's suppose, अब ये बहुत टेक्निकल चीज है, मुझे नहीं पता तुमने स्कूल में कैसे पढ़ा है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझा रहा हूँ, समझना। Let's suppose you have a data 10, 7, 15, 9, 2, right? This is your data. ठीक है? How many elements are there? 5 elements. What are the elements? Yeah. 10, 7, 15, 15, 9 and 2. Acha, how bubble sort work? Now listen to me very carefully. Computer is going to compare these things. Like I'm writing it again here. ठीक है? अब once you are doing the bubble sort, तो कंप्यूटर ना तुम्हारे डाटा को क्या करेगा बताओ, अभी बताया था मैंने, मैच करेगा इन दोनों को। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों असेंडिंग ऑर्डर में है? No. So computer is going to tell me swap. तो पहले क्या आ जाएगा? 7, 10, बाकी नंबर एज इट इज।
सही है। अब हाँ, कंप्यूटर नेक्स्ट टू वैल्यूज को स्वैप करेगा इन दोनों को। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है? हाँ, तो इनको टच नहीं करेगा, इनको एज इट इज रहने देगा। 7, 10, 15, 9, 2। अच्छा, अब कंप्यूटर नेक्स्ट स्टेज में इन दोनों को देखेगा। क्या ये दोनों असेंडिंग ऑर्डर में है? नहीं, नहीं है, तो क्या करेगा जल्दी बताओ। 7, swap, 10, 9, 15, 2। अब बताओ, क्या आखिर के दोनों यानी 15 और 2 को कंपेयर करेगा? क्या ये दोनों एक ऑर्डर में है? नहीं, नहीं है, तो कंप्यूटर वापस से इन दोनों को स्वैप करेगा। 7, 10, 9, 2, 15। 15, तो देखो, इस तरह से कंप्यूटर ने अपना एक टास्क पूरा किया। क्या पूरा किया जी? इसने तमाम नंबर्स को क्या किया, एक स्पेसिफिक वे में सॉर्ट कर दिया। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर अभी तो बहुत सारे नंबर्स ऑर्डर में नहीं है। बोलो, पूछो। हाँ, yeah, it's not, everything's not in order. Yes, so this is our pass one, means stage one. This is our stage one. One. अच्छा, मैं भी ना अजीब टीचर हूँ, बच्चे सवाल पूछते नहीं है, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ अपने आप से। अजीब चक्कर है यार, लिटरली इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और तुम्हारे अलावा एक साउथ अफ्रीकन लड़की है, मैं उसको पढ़ाता हूँ। दुबई की एक लड़की है, मैं उसको पढ़ाता हूँ। कराची की भी बच्चियां हैं, मैं उसको पढ़ाता हूँ, गर्ल्स को। कोई भी क्वेश्चन ही नहीं करते बच्चे। अजीब बच्चे हैं आप लोग। मतलब शायद मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि बच्चे सवाल ही नहीं करते। अजीब अजीब, मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ। लेकिन फिर भी यार, कोई सवाल ववाल करता है बच्चा, तुम लोग करते ही नहीं हो। पूरी दुनिया के बच्चे एक जैसे हैं यार। मैं ये समझता था जो बाहर के बच्चे होते हैं ना, अमेरिका के, यूरोप के या मिडिल ईस्ट के, ये बच्चे बड़े जबरदस्त होते हैं, बड़े चीते होते हैं। लेकिन जब मैं माशाल्लाह पढ़ा लेता हूँ ना आप लोगों को, तो मुझे ये फील होता है कि बच्चे बच्चे दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, उनका नेचर एक है। और लिटरली आई फाउंड दिस थिंग। कभी तुम ये सोचती हो कि एशिया के, पाकिस्तान के बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी तुम्हारी तरह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, सब एक जैसे हैं, कोई बच्चा फर्क नहीं है, कहीं का भी ले लो। अच्छा, ये क्या था, जल्दी बताओ। पास वन। अब मैं पास टू करूंगा। पास टू का मतलब क्या है? बाकी नंबर्स को अरेंज कर रहा हूं। तो चलो, अब कंप्यूटर क्या करेगा जल्दी बताओ। पास टू में इन दोनों को चेक करेगा, यानी 7, 10, 9, 2, 15। तो 7 और 9 अरेंज हैं, इन दोनों को हाँ, छेड़ेगा हाँ, नहीं। अब कंप्यूटर किसको चेक करेगा? इन दोनों को। ये चेक करो, जल्दी बताओ। 9 out of 9. So 7, 7, 10, 2, 2, 15. 9, 15। अब किसको चेक करेगा? 9 और 15। हाँ, सही है ना? 9 और 15 तो सेम है। अच्छा, पहले किसको चेक किया था? 7, पहले मैं वो लिखूं 10, 9, 2, 15, इसको चेक किया था। ठीक है, ये सेम रहे। अच्छा, अब 9 और 15 को चेक किया तो वो दोनों भी सेम ही रहेंगे। क्यों बताओ? क्योंकि वो ऑलरेडी अरेंज्ड है। सही है ना? मैं एरो नहीं बना Does not रहा। have ascending order. या Yeah. नाउ दिस इज अवर पास टू। दिस इज अवर पास टू। अच्छा, अब क्या करना है? पास थ्री करना है। अच्छा, अब मुझे बताओ, 7, 10, 2, 9, 15 अरेंज है? फर्स्ट स्टेप तो No. अरेंज है, 7 और 10। अब मुझे बताओ 10 और 2 में क्या ये अरेंज They है? get swapped. नो। They get swapped. जबरदस्त जबरदस्त, शाबाश शाबाश। 7, 2, 10, 9, 15. Now computer is going to check 10 and 9. 7, 2, yes, 9, 10, 15. Yes, tell me, next stage. 7 So and it's 2. gonna 7 and 2. be Yes, 2, 2. No. 7. I miss. Okay, done. This is done. This step is done. This pass is done. This pass is done. Because 15 तक पहुंच गए ना, 9 और 15। 9 स्वैप हुआ, फिर 10 आया, 10 और 15 एज इट इज रहेंगे, तो ये पास 3 हो गया।
ठीक है। अच्छा अब हम दोबारा लेते हैं। अब चलो कंपेयर करो 7, 2, तो 2 का स्वैप हो जाएगा, 7, 9, 10, 15, तो ये पास 4 हो गया हमारा। अच्छा अब तुम चाहो तो दोबारा इन पांचों को कंपेयर करवा दो, जरूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन कंपेयर कराने तो करा दो, तो वो एज इट इज स्टेप बढ़ते रहेंगे बस, लेकिन कंपैरिजन में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि सब अलाइन हो गए। ऐसा ही है, देखो जरा गौर से, कोई रह तो नहीं गया। 7, 9, 10. Yeah, it's fine. ओके अब तुम एक बात देखना, अब बहुत समझने वाली बात है। देखो आपने बबल सॉर्ट का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और इसमें आपका डाटा था और आपने पासेस चलाए, कितने बार चला पास? 4 बार। Sure. बबल सॉर्ट में 2 तरह के लूप होते हैं। कितने तरह के लूप होते हैं? Go. इन बबल सॉर्ट वी हैव 2 लूप्स। एक इनर लूप होता है और एक आउटर लूप होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया ये टॉपिक तुम्हें? No, we didn't do bubble sorts. We didn't do bubble sort yet. Did she left it? We didn't do it. So I you don't didn't do know. it yet. Okay. अच्छा देखो 2 तरह के बबल सॉर्ट में लूप होते हैं। कितनी तरह के? 2 तरह के। एक होता है इनर लूप, एक होता है आउटर लूप, ठीक है ना। अच्छा अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब मैं वापस बुक पे जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Done. डन है, हटा रहा हूँ मैं स्क्रीन। अच्छा अब तुम्हें दोबारा से वही टॉपिक खोलना है जो माय एरेज मैंने तुमसे लिखवाया था। 27, 19 वाला एक एरे नहीं करवाया था अभी शुरू में, वो लिखवाया था मैंने तुम्हें, वापस उस पर चली जाओ। Okay. अच्छा अब मैं उसको सॉर्ट करवा रहा हूं तुमसे बबल सॉर्ट की मदद से, लेकिन मैं एल्गोरिथम बनवा रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं तुम्हें दे चुका हूं। अब मैं तुम्हें इनर लूप और आउटर लूप का कॉन्सेप्ट दूंगा। क्या दूंगा? इनर लूप और आउटर लूप का कॉन्सेप्ट। अच्छा मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बी वेरी केयरफुल। Declare my list. What is my list? My array, right? Yeah. अच्छा ठीक है जी। अच्छा अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड, ये दोबारा नहीं बता रहा। इंडेक्स, स्वैप, हाँ भाई स्वैप होगा नहीं होगा? होगा। बूलियन क्यों है? बिकॉज इफ इट इज नीडेड इट इज ट्रू, इफ इट इज नॉट नीडेड इट इज False. false. Temp, temp is a variable. Yes. देखो भाई temp क्या है? temp एक वेरिएबल होगा। इस वेरिएबल का काम ये होगा कि ये वैल्यूज को टेम्पररी तौर पे स्टोर करेगा अपने बॉक्स में। क्या करेगा? वैल्यूज को स्टोर करेगा अपने बॉक्स में, ठीक है। इंटीजर्स को, जाहिर है हमारा डाटा है इंटीजर। डिक्लेयर टॉप इंटीजर। अच्छा अब ये टॉप का क्या मतलब है? देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूं, यहां पर आओ, ये देखो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। टॉप का मतलब है इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट टू कंपेयर। हम बबल सॉर्ट में क्या करते हैं? कंपेयर तो करते हैं ना डाटा को। अब हमारे पास टॉप का मतलब क्या होगा? ये इंडेक्स होगा सबसे लास्ट एलिमेंट, यानी लास्ट जो भी एलिमेंट है। जरा मुझे बताना लास्ट एलिमेंट क्या लिखा था? 55. अब ये तमाम डाटा को, जैसे मैंने अभी तमाम डाटा को कंपेयर किया और कराते कराते मैं लास्ट अपने स्टेज पर आ गया, लास्ट पास, यानी कि तमाम एलिमेंट्स को मैंने अपनी इस एग्जाम्पल में कंपेयर किया था और उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई? 15 आई थी मेरे पास। इसी तरह टॉप तुम्हारे पास 55 आएगा आखिर में, आफ्टर कंपैरिजन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। और टेम्प मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन होता है ड्यूरिंग स्वैप, यानी जब तुम स्वैप कर रही होगी तो नंबर्स टेम्प के अंदर सेव करोगी। तो ऊपर आ जाओ वापस। अच्छा यहां तक क्लियर है या नहीं है? अभी तो डिक्लेरेशन चल रही है। It's clear. Yeah. अब वापस से पुरानी चीज बता रहा हूं। अपर बॉन्ड क्या है? 8, लोअर बॉन्ड 0, टॉप अपर बॉन्ड, यानी कि
अपर बाउंड जो है वो टॉप कहलाएगा। क्यों टॉप कहलाएगा मुझे जल्दी से बताओ। Upper bound is at the, sorry, at the मैं top. बता रहा हूँ, देखो ये देखो, ये 56 है ना, तुमने क्या बताया था? 55. 55 है। अच्छा ये कौन सी पोजीशन पर है? 8. तो ये टॉप कहलाएगा क्योंकि तमाम नंबर्स इसी पोजीशन से कंपेयर होंगे और फिर इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, जैसे हमने अभी किया। अभी जो वर्ड की फाइल है, अरे यार मैं दोबारा वापस आ गया, ये देखो, देखो सबसे आखिर में 15 आ रहा है, तो 15 मेरा टॉप हुआ ना। क्यों टॉप हुआ? क्योंकि 15 वो वैल्यू थी जो सबसे आखिर में आनी थी और बाकी तमाम नंबर उसी से कंपेयर होते गए और कंपेयर होते गए, अरेंज होते गए। फिर 15 के बाद टॉप कौन सा हुआ? 10 हुआ, फिर इससे कंपेयर होते गए, अरेंज होते गए, फिर 9 हुआ, फिर 2 हुआ और फाइनली 7 हुआ। तो टॉप वैल्यू सबसे बॉटम वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा यहां तक क्लियर है। अब चल रहे हैं हम अपने एल्गोरिथम पर। You need to keep an eagle eye on your algorithm now. ठीक है जी, चलो स्टार्ट करवा रहा हूं। Repeat. It means that in my loop there are different numbers. So if we have number of items which are arranged one to one back to back, we need to use a loop. That is the reason we are using loop here. कोई confusion? No. Index. अब सुनो, एक और लूप आ गया। मैंने कहा था ना 2 लूप होते हैं, कहा था 2 लूप होते हैं, Inner and outer. यस वेरी गुड। अब ये देखो लूप, यहां से एक देखो रिपीट अंटिल का लूप है और एक फॉर नेक्स्ट का लूप है। अब देखो आउटर लूप कौन सा होगा? रिपीट अंटिल वाला। और इनर लूप कौन सा होगा? फॉर नेक्स्ट वाला। अभी क्लियर कर दूंगा, एक सेकंड में, बेफिक्र हो जाओ, पहले समझ लो। फॉर इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू क्या है? Index. 8, सबसे आखिरी। इंडेक्स इज इक्वल टू लोअर बाउंड टू अप टॉप, यानी कि लोअर बाउंड से लेकर कहां तक जाएगी जल्दी बताओ? अपर बाउंड तक, यानी पहले से लेके आखिरी तक जाएगी। एल लिख रहा हूं और यू लिख रहा हूं। -1, व्हाट डज इट मीन -1? लुक, it means this way. Oh, the number before the top? The Yes. number which is above. Look, -1. The values are comparing and they are going to be arranged in an ascending order. So the value is going to be downward and the step are becoming decreasing. So we use -1. Is that clear or not clear? It is clear. अच्छा, swap अभी 0 है क्योंकि कंपैरिजन अभी शुरू ही नहीं हुआ। अब शुरू कर रहा हूं मैं। If my list index is 0, अच्छा, ग्रेटर देन माई लिस्ट इंडेक्स +1। अब मुझे बताना पहली वैल्यू क्या है जल्दी से? 27. 22। और दूसरी बताओ? 27. 27। और दूसरी कौन सी है? 19. अब मुझे जल्दी से बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? 27 है। इन दोनों में छोटा कौन है? 19. अब मुझे बताओ, अगर माई लिस्ट का इंडेक्स 0 बड़ा है माई लिस्ट के इंडेक्स +1 से, यानी +1 का मतलब क्या हुआ? माई इंडेक्स ये 0 था, 0 में 1 ऐड करो, +1। इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। अगर बड़ा है माई लिस्ट इंडेक्स 0, अगर बड़ा है तो क्या करना है? टेम्प में सेव कर देना है। किसको सेव कर देना है? इन दोनों वैल्यूज को। और उसके बाद माई लिस्ट इंडेक्स इज इक्वल टू माई लिस्ट इंडेक्स, यानी कि फिर 19 को स्टोर करवा देना है ऊपर माई लिस्ट इंडेक्स में, और 27 की वैल्यू किस में स्टोर करवा देनी है? टेम्प में। अब माई लिस्ट इंडेक्स +1 इज इक्वल टू टेम्प, और अब वापस से कंप्यूटर नेक्स्ट स्टेप पे खाली डब्बे पे जाएगा और उसमें माई लिस्ट में टेम्प की वैल्यू स्टोर कर देगा जो कि क्या रखी हुई थी? 27। तो नंबर स्वैप हो गए, 19 ऊपर जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा। टेम्पररी का काम ये था कि टेम्पररी ने दोनों को कंपैरिजन के वक्त 27 को अपने अंदर रख लिया था। ये देखो 27 इसमें सेफ हो गया था, तो 19 ऊपर चला गया। फिर तुमने क्या किया? माई लिस्ट इंडेक्स +1, +1 का मतलब क्या है? 0 के बाद 1 है, 1 खाली था, 1 में उसने क्या रखवा दिया? 27। स्वैप हो गए।
Okay, just 1 second. Sure. Fine. No problem. स्वैप इज इक्वल टू ट्रू, स्वैप हुआ है, ट्रू है, एंड इफ हो गया, सही है, यानी कि यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई। अब टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, यानी कि अब हमारे पास टॉप के अंदर टॉप -1 की वैल्यू स्टोर करवानी है। यानी कि नेक्स्ट वैल्यू क्या करेगी, अब अगली 2 वैल्यूज को देखेगा कंप्यूटर, जैसे मैंने अभी सिखाया था ना तुम्हें, 2 वैल्यूज करके हर लाइन में। तो अब टॉप में क्या होगा, कंप्यूटर क्या करेगा, हर 2 वैल्यूज को, यानी जो नीचे से शुरू हो रही है, यानी यहां से, अब ये टॉप है और इसके बाद की वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करवाएगा। अब सेम दोबारा से सिनेरियो चलेगा until not swap और top is equal to 0, जब तक टॉप 0 ना आ जाए, यानी जब तक टॉप के अंदर जो वैल्यू है वो इरेज या कंप्लीट ना हो जाए, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। Okay. अच्छा, प्रोग्राम खत्म बस। अच्छा, अब जल्दी से कॉपी निकालो, इस एल्गोरिथम को लिखो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले वही एरे दोबारा लिखना होगा। कौन सा, माई लिस्ट वाला, ठीक है? तो ये होमवर्क में कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। I'll just get the page number. अच्छा चलो सही, पेज नंबर ले लो। 245 और माई लिस्ट का याद है तुम्हें ऊपर? Oh, yeah, I have it चलो down. सही है। आज की क्लास यहीं तक थी हमारी, ठीक है? आज हमने बबल सॉर्ट का टॉपिक किया, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एल्गोरिथम की कॉन्सेप्ट समझा। आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम क्या नजर आ रहा है, फाइल्स, ठीक है? बल्कि एक काम करना लबीबा, फाइल्स खुद कर लेना घर पे, फाइल्स का टॉपिक तुम खुद करोगी। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को एडीटी स्टार्ट करवाऊंगा, अच्छा, ठीक है? एडीटी इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, याद रखना। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। okay.